Hello students, how are you all? I hope you are doing good and everybody is fine. Now as you have summer break, I think everyone has summer break. So this is the best time to utilize. You can cover up most of your syllabus and with a cool mind. So today we are starting with the first chapter of class 12th maths, relation function. And in this chapter I'll cover in two videos rather. In the first video we'll start with the relation. What is the relation? What are the different topics in the relation? In the second part we'll start with the function. As you can already see, I've written here relation part 1. The function part I'll cover in the second video. That will be part 2. So without wasting our time, as you can see in the screen, what do you mean by what do we need to study there? We need to study reflexive, symmetric, transitive. Now what all are they? वो हम देखेंगे अभी one by one. सबसे पहले थोड़ा recap कर लेते हैं. What do you mean by this recap? Which was Cartesian product. कार्टेशियन प्रोडक्ट. आई होप यू रिमेम्बर कि आपने पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट नाम की कोई एक चीज पढ़ी थी वहां पे, जब वहां पे भी आपके पास 11th में रिलेशन का चैप्टर आता है. व्हाट वाज दैट? आई एम जस्ट रिकैपिंग, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसमें. क्या था हमारे पास? वी शुड हैव लाइक इफ यू हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, देन बी प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई. सो वी डिफाइन दिस एज क्रॉस इन बिटवीन टू. ठीक है, मींस हाउ वी डिफाइन, नोट हियर, अलग से डिफाइन कर देते हैं. दिस इज ए क्रॉस बी. How we define this is A और बीच में अगर मैंने क्रॉस लगा दिया then we call it product. So it is totally called Cartesian product. A cross B is Cartesian product. Now what do you mean by this Cartesian product? Cartesian product कहता है कि suppose मेरे पास है 1 2 और यहाँ पे है मेरे पास A and B. So what I can relate this what? I can write this ordered pair. Ordered pair of what kind? Ordered pair of A comma B such that your A belongs to जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, तो फर्स्ट वाला है वो आपका फर्स्ट वाले सेट से बिलोंग करेगा और जो सेकंड वाला है वो आपके सेकंड वाले सेट से बिलोंग करेगा. आई होप इट इज क्लियर. कैसे? मतलब कि यहाँ से आपने क्या किया, आपने यहाँ से एक ऑर्डर्ड पेयर उठाया. इस दिस कैन रिलेट टू दिस वन, ऐसे बन सकता है. तो 1, A दिस विल बी द फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर. अब ये आपको पता है कि व्हाट मीन बाय ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर की जब आप दो एलिमेंट्स को ऐसे कॉमा लगा के विद ब्रैकेट आप लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ पेयर, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर. दिस वी कॉल इज ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर का मतलब दे आर इन ऑर्डर. ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर में है और पेयर में है, सो दे आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर. मतलब पहले एलिमेंट आएगा किसका, ए वाला, और फिर आएगा बी वाला. अब ऐसा नहीं है कि हमेशा आप इट इज 1, A. द नेक्स्ट कैन बी, अब जरूरी नहीं है कि ए के साथ रिलेट रहेगा 1. इट कैन बी रिलेटेड विद बी ऑल्सो. सो आई कैन हैव द नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर एज 1, B. Then similarly we can go with the 2 also. It can be 2, A and then we can have 2, B also. I hope it is clear कि what do you mean by Cartesian product. This you have already studied. और आप इसको लगा देंगे किसमें, ब्रैकेट फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा, ये एक सेट बन जाएगा, ये आपका Cartesian product बन जाएगा. This you have already studied. ये Cartesian का मतलब क्या होता है? When each and every element related to each and every element of B. आपको क्या, you are taking pair wise. अब जैसे कि मैंने लिखा है B, A. Suppose I would have find out A cross B. This was A cross B. Suppose I have to find out now B cross A. What do you mean by that? अब इसमें चीजें उल्टी हो जाएंगी. जो पहले सेट है बेटा वो पहले आएगा, इसीलिए we call this as ordered pair. जो पहले है मतलब B के एलिमेंट सब पहले आएंगे और A के एलिमेंट सब बाद में आएंगे. This will change. देखो, जब A पहले था तो A के एलिमेंट्स पहले आए थे, जब B बाद में पहले थे तो B के एलिमेंट्स पहले आएंगे. So this implies your B belongs to your capital B and your A belongs to your capital A. This was your Cartesian product you have studied earlier. अब मैंने क्यों बताया है, क्या मतलब है इसका, अभी इसका पता चलेगा कि मैंने क्यों बताया. अब इसमें से एक क्वेश्चन और बन जाता है, एक क्वेश्चन और रहता है कि सपोज यू आर गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स. लेट्स सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दिया है ए में सपोज 3 और सपोज आपको बी में दिया है हाउ मच, सपोज यू आर गिवन 4. तो पूछता है कि हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी देयर. Suppose this is 4. So वो पूछता है कि how many elements in the ordered pair will be there, in the Cartesian product will be there, और how many ordered pairs will be there. तो आपने क्या करना है, सिर्फ आपने अगर यहाँ से देखा they will having 2 elements और यहाँ पे भी कितने थे, 2 थे, लेकिन जब हमने ordered pair बनाया तो कितने मिले मेरे पास, I got 4. तो 4 कैसे आया, just multiply number of elements of both, you'll get the number of ordered pair or the elements in the Cartesian product. So this will be 3 cross 4. अगर ऐसे है तो आंसर आ जाएगा आपका 12. क्लियर है बात. सो इफ यू है इन जनरल, अगर मैं बात करूं इन जनरल, व्हाट इज दैट, इफ यू हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज M, तो आपके पास क्या, M and N,
तो आपके पास क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विल बी व्हाट, दैट विल बी इक्वल्स टू M क्रॉस N। आई होप इट इज क्लियर। दिस वाज द रिकैप। देखो फालतू की बकवास नहीं करेंगे, सीधी बात करेंगे जो हमें पढ़ना है। एक्चुअली हमें पढ़ना है मतलब पढ़ना है। अब ऐसे नहीं कि हंसी मजाक कर रही हूँ, चुटकुले सुना रही हूँ तो आपको अच्छा लगेगा कि क्लास अच्छी लग रही है, मैं तो पढ़ाते जा रही तो बोरिंग हो रही है। देखो अगर आपको ऐसा सोचना है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। ठीक है, आजकल का पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, बट पढ़ाई चेंज नहीं होगी। जो पढ़ाई है अगर आप सीरियस होकर पढ़ोगे तो ही आप अच्छा कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि भाई हंसी मजाक से करने से हो जाएंगी चीजें खत्म, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बीच बीच में नॉर्मल बातें करेंगे, ठीक है, बट पढ़ाई मतलब पढ़ाई, यू विल हैव टू बी सीरियस। अब मेरे सीरियस से मतलब वो नहीं कि हॉस्पिटल पहुंच जाओ, बट सीरियस मतलब पढ़ाई भी कर रहे हैं तो पढ़ाई पे ही फोकस होना चाहिए। फालतू की चीज दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि भाई मुझे ये रील्स देखनी है, मुझे इंस्टाग्राम चलाना है, मुझे फेसबुक चलाना है और सामने वीडियो चल रही है पढ़ाई की, तो वो नहीं। दिमाग में जब पढ़ाई की वीडियो चल रही है तो सिर्फ वीडियो चल रही है, जब इंस्टाग्राम की रील्स देखोगे तो सिर्फ इंस्टाग्राम की रील्स देखना, सिर्फ फेसबुक की रील्स देखना। सिर्फ पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई। जो काम जिस टाइम पे कर रहे हो, सपोज खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने के बारे में सोचो। तो वही चीज होती है कंसंट्रेशन, कि आप कितना एक चीज को लेके पर्टिकुलर हो। चलिए अब बात करते हैं कि हमने इसके बारे में बात क्यों, हम तो रिलेशन पढ़ने वाले थे, कार्टेशियन से कैसे रिलेट करेंगे। देखिए कार्टेशियन से ऐसे रिलेट करेंगे, दिस वाज A, दिस वाज B, दिस वाज 1 2 3, लेट्स सपोज A and B, so you will have, अभी जो निकाला था A क्रॉस B will be nothing but it can be 1 comma A, it can be 2 comma A, it can be 3 comma A, then we go for the next one 1 comma B, 2 comma B। अब आप आगे पीछे आप बोलोगे पहले A वाला लिखा है फिर B वाला, आप कुछ भी लिख सकते हो आगे पीछे। इसमें ना ये नहीं है कि आप पहले वाला कौन सा ऑर्डर पे लिखेंगे, हाँ एलिमेंट तो सेम रहने चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इट विल बी 2 comma B and 2 3 comma B। तो ये आपने बना लिया कार्टेशियन, ठीक है। अब रिलेशन से डिफाइन कैसे करना है, सपोज मैं करती हूँ। अब रिलेशन का देखो, आपके पास बहुत सारे, अगर इन जनरल में बात करूं, यू हैव लॉट्स ऑफ रिलेशंस इन योर लाइफ आल्सो, कि भाई एक पर्टिकुलर बंदा है, सपोज एक मैंने बंदा उठा लिया, सपोज पर्टिकुलर कि भाई ये इस बंदे का नाम है सपोज मोहन, ठीक है। इस बंदे को मैंने बोल दिया ये मोहन बना देते हैं, छोटा सा, ये छोटा सा मोहन बना लिया। अब ये जो मोहन है वो एक घर में रहता है, ठीक है, इसी घर में उठा देते हैं, ज्यादा अच्छा घर नहीं बनाऊंगा फिर वो भाग जाएगा, ठीक है। चलिए इस मोहन को हमने घर में उठा दिया। अब इस मोहन के पास क्या है, इसकी मम्मी भी होंगी, ठीक है, इसके पापा भी होंगे, इसकी कोई छोटी बहन है, सिस्टर है सपोज कोई, और कोई बड़ा भाई, सपोज वी हैव ब्रदर आल्सो, और भी बहुत सारे रिलेशन होंगे। लाइक सपोज उसके घर में उसके, तो ये मैंने क्या बहुत सारे रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिए कि भाई एक पर्टिकुलर बंदे के ना इतने सारे रिलेशन है। लेकिन मैं अगर बोलूं कि भाई तो मैं ना अपने एक पर्टिकुलर, मतलब अगर मैंने उनको बोला, इस मोहन को बोला मैंने कि तुम जाओ और अपने से रिलेटेड एक बंदे को उठा के लेके आओ, एक बंदे को लेके आओ, तो उसने क्या किया, अब उसे समझ नहीं आया कि भाई उसने बोला कि अपने से रिलेटेड बंदे को उठा के लेके आओ। तो रिलेटेड बंदे को उठाने का वो तो बोलेगा भाई मम्मी भी रिलेटेड है, पापा रिलेटेड है, भाई बहन अंकल आंटी दादा दादी सब मेरे से रिलेटेड है। तो उसने क्या किया, वो सारे को उठा के ले गया, तो वो तो हो गया क्या, कार्टेशियन हो गया, क्यों सारा उठा के ले जा रहा है। लेकिन अगर मैं बोल दूं पर्टिकुलर कि भाई अपने पापा को उठा के लेके आओ, ठीक है, अपने पापा जी को उठा के लेके आना है, तो पापा सिर्फ पापा को ही लेके आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट रहेगा वो मेरे सिर्फ पापा रहेंगे। बात समझ में आई, बात समझ में आई। जो यहाँ पे अभी जो ये था, सॉरी देखो यहाँ पे मैं पूरा लिख देती हूँ, पहले इसके कार्टेशियन का पहले इसके कार्टेशियन लिखते हैं। इसके कार्टेशियन में कौन है, इसके कार्टेशियन में इसके फादर है, इसकी मदर है, ठीक है, इसकी सिस्टर है, और इसकी कौन था, ब्रदर था, फिर इसकी आंटी थी, और इसके अंकल थे, ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर, ठीक है, ये इसके सारे थे रिलेशन में। अब मैंने क्या किया कि भाई देखो ये तो इसका पूरा रिलेशन कि वो किसी भी बंदे को ला सकता है उठा के, लेकिन मैं उसको बोल रही हूँ कि भाई तुम एक अपने पर्टिकुलर बंदे को उठा के लेके आओ। तो पर्टिकुलर बंदे में मैंने रिलेशन एक डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन किया कि तुम अपने पापा को ही लेके आओगे। तो जब ये रिलेशन बनेगा तुम्हारा, उसमें वो सिर्फ किसको लेके आएगा, अपने पापा को लेके आएगा। बात समझ में आ रही है, अपने पापा को यानी अपने फादर को ही लेके आएगा। या फिर मैं बोलती हूँ तुम्हें अपने पीटीएम में, सपोज अपने पीटीएम चल रही है बच्चे की, आज इसकी पढ़ाई होने वाली है, या फिर मम्मी को लेके आओ, और मैं अलाउ करते मम्मी को पटा लेते हैं मोहन लोग, ठीक है, मोहिनी होती तो चल जाती, और मोहन जो होता है वो पापा को मम्मी को पटा लेते हैं, जिसे मैं कहती हूँ पापा को लेके आइए। तो पापा को बुलाया, तो रिलेशन जो डिफाइन किया अभी भी पापा को ही लेके आना है, उसको हम डिफाइन करेंगे कैपिटल आर से। और फिर क्या हुआ, ये हमने आर को डिफाइन किया। और अगर आप देखो ये जो आर मैंने डिफाइन किया अभी, यू नो द मीनिंग ऑफ सबसेट, यू नो द मीनिंग ऑफ सबसेट। सबसेट का मतलब होता है कोई भी सेट का एक छोटा सा हिस्सा।
लाइक पार्ट ऑफ सेट। तो उसने क्या किया, इस पापा को, अगर आप देखो ये पापा इस पूरे में भी है कि नहीं है। हो सकता है कि भाई मैं बोल दूं मदर को ले आओ, तो ये मदर इस पूरे में भी आएगा। हो सकता है फादर और मदर को ले आओ, तो भी वो फादर मदर पूरे में आएंगे। तो कोई भी रिलेशन को अगर मैं डिफाइन करूं और वो रिलेशन कहाँ लाई कर जाए, वो रिलेशन पूरा मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में लाई कर जाए, ठीक है। वो जो हमने सेट बनाया नया, वो जो सबसेट नया बनाया है, वो सबसेट अगर हमारे कार्टेशियन में लाई कर जाए तो हम क्या कहेंगे कि दैट कार्टेशियन इज नथिंग बट द रिलेशन ऑफ योर A क्रॉस B, ऑफ योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। यही इसी चीज से हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं। इसीलिए मैंने आपको कार्टेशियन बताया था कि कार्टेशियन का मतलब क्या है, कि ये मतलब कार्टेशियन का A क्रॉस B। तो हाउ डू वी आर रिलेटिंग दिस, कि भाई एक रिलेशन ऐसे है कि अगर पूरे तो मेरे पास है, पूरे रिलेशंस मेरे पास हैं घर में, लेकिन जब मैं एक पर्टिकुलर, जब पूरे रिलेशन की बात करते हैं तो सब रिलेशंस में आ जाते हैं, लेकिन जब मैं एक पर्टिकुलर बंदे की बात करती हूँ तो मैं उसको डिफाइन करती हूँ। या फिर दो बंदे की बात कर रही हूँ, क्योंकि पेरेंट्स को दोनों को लेके आना है, तो पेरेंट्स का दोनों को लेके आने का मतलब क्या, फादर और मदर। तो फादर और मदर का भी अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ पे फादर और मदर भी लिख दूं, इफ आई एम राइटिंग फादर एंड मदर ऑल्सो, तब भी क्या है, तब भी ये वाला सेट हमारे किसमें, A क्रॉस B में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये रिलेशंस भी हैं। बात समझ में आ रही है। सो दिस इज कॉल्ड द रिलेशन। कई बार बच्चे ना रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाते, तो रिलेशन क्या मतलब होता है, क्या रिलेशन का मतलब, कई बार ना बच्चे बिल्कुल नहीं कर पाते। मैं पूछूंगी रिलेशन क्या होगा, वो चुप होकर बैठ जाएंगे। तो रिलेशन क्या हुआ, इट इज रिलेशन फ्रॉम सेट A to B विच इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। बात समझ में आ रही है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, धीरे धीरे पढ़िए, समझिए चीजों को। उसके बाद अब एक्चुअली डिफाइन करते हैं कि रिलेशन का मतलब क्या होता है। अगर मैं डेफिनेशन की बात कर दूं, इफ यू हैव सेट A एंड इफ यू हैव सेट B, सो वी आर डिफाइनिंग, यहां से मैं रिलेशन डिफाइन करती हूँ नेम विद कैपिटल R। तो रिलेशन इज नथिंग बट इट इज फ्रॉम सेट A to set B, it is from set A to set B such that your R will contained in A cross B। अब R will contained in A cross B। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उसका पार्ट है, वो पूरा भी हो सकता है और वो आधा भी हो सकता है। दिस इज द रिलेशन, ये बोलते हैं, ठीक है। या फिर अगर वी कैन गो वाइस वर्सा ऑल्सो, दिस इज वाइस वर्सा कंडीशन, कि अगर कोई ऐसा हमारे पास मैपिंग है, दिस वी कॉल एज मैपिंग। अगर कोई ऐसी मैपिंग है जो कि पूरा A क्रॉस B में लाई कर रही है या फिर उसका पार्ट लाई कर रहा है, देन वी कॉल दैट मैपिंग एज ए रिलेशन, ठीक है। दिस इज ए मैपिंग। इफ ए मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम A क्रॉस B, A to B, then we say if that mapping is contained in A cross B, then we call it as a relation। क्लियर है बात कि रिलेशन का मतलब क्या है। अब एक चीज और पूछ लेता है वो फिर से, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ कार्टेशियन एलिमेंट्स कितने होते हैं। अब वो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रिलेशंस बताइए, जैसे कि हमने मैपिंग डिफाइन की थी। सपोज यू हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सपोज यू हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B as n, तो हाउ मेनी रिलेशंस विल बी देयर, नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशन कुछ नहीं है, 2 to the power n क्रॉस n, ठीक है। सपोज आपके पास यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 4 थे, तो रिलेशंस कितने बन जाएंगे, इट विल बी 2 to the power 3 क्रॉस 4। जितना भी आपने कार्टेशियन निकाला ना उसको 2 to the power कर दीजिए, यू विल गेट द नंबर ऑफ रिलेशंस। I hope it is clear. So this is how you define relation of any mapping। दो सेट अगर आपको दिए उनके बीच में रिलेशन डिफाइन करना है तो वो कैसे करेंगे। सपोज अगेन डिफाइनिंग M, I am defining this 1 2 3 and this is A, B। So what relation it will have? Suppose this is the relation it is making। Let's suppose पूरा नहीं बनाते हैं, this and this is so we have the relation here 1, A and 2, B and 3, A। अगर आप देख रहे हो कि रिलेशन में मैंने 3 मैपिंग लिखे हैं, 3 ऑर्डर पेयर लिखे हैं। जब हमारा कार्टेशियन होता है तो पूरा आता है। कैन यू सी, अगर मैं इसका सिर्फ कार्टेशियन लिखूं तो कार्टेशियन में सब आएगा। कार्टेशियन में 1, A भी आएगा, यू विल हैव 1, B आल्सो, यू हैव 2A, देन यू विल हैव 2B एंड यू विल हैव 3A एंड 3B। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कार्टेशियन एंड रिलेशन। ये कार्टेशियन है जिसमें कि पूरा आता है, फुल पूरा घर आएगा इसमें, और रिलेशन जिसमें मैंने एक पर्टिकुलर चीज की बात की है। सो दिस मैपिंग इज कॉल्ड योर रिलेशन। दिस यू कैन सी, दिस इज योर रिलेशन। आई होप दिस मैं क्यों एम्फसाइज कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या है, कि बहुत देर से अपना रिलेशन पढ़ा रहे हैं। चलिए अब क्यों पढ़ाया इसमें। अब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, किसमें, रिलेशन की बात कर रही हूँ, जो अगर रिलेशन में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर,
ऑर्डर पेयर इन कहाँ पे, इन रिलेशन, कार्टेशियन में नहीं, रिलेशन की बात करी जो मैंने मैपिंग डिफाइन किया, तो उनको क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे, सपोज मैं कलेक्ट कर लेती हूँ उनको 1 2 and 3, तो मैंने उनको कलेक्ट कर लिया, तो व्हेन आई मेकिंग सेपरेट सेट यूजिंग दोज फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, दैट इज कॉल्ड माय डोमेन, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। और अगर आप देखो ये 1 2 3 कहाँ से आए, ये 1 2 3 आए हमारे फर्स्ट वाले सेट से, देखिए इससे आए ना, ये इस वाले से, इस वाले से। सो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट हमारे डोमेन है, फर्स्ट सेट ऑफ एलिमेंट्स हुआ ऑर्डर्ड पेयर का, दैट वी कॉल एज डोमेन। अभी तो बोले भी सेकंड वाले तो बचे हुए हैं, यस बिल्कुल बचे हुए हैं, सेकंड वाले को भी उठा लो। तो अगर हम सेकंड वाले को उठा लेते हैं तो सेकंड में कौन कौन सा आ रहा है, वी हैव a, b, नो नीड टू राइट द रिपीटेड एलिमेंट्स। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, बेसिकली डोमेन और रेंज वो होते हैं कि भाई सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है, सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन, सपोज आपके पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है कि आपने क्या डोमेन होता है इनपुट, मतलब क्या आपने वैल्यू रखी इसमें, और रेंज होता है आउटपुट, आपका आंसर क्या आया, बेसिकली इज दैट कि आपका एक इनपुट आपने क्या दिया और आउटपुट क्या, जैसे आप कंप्यूटर्स में पढ़ते हो इनपुट आउटपुट, सो दैट इज डोमेन एंड रेंज। डोमेन इज नथिंग बट the input you are giving to a question and the range is the output you are getting. So set of all first elements is in ordered pair is your domain and second वाले के अगर सारे collect कर ले तो that we call it range. So here I have defined 3 things in this chapter and I think you have that's why I am saying this was recap. What is Cartesian? I hope it is clear. What is relation? I hope it is clear. And what is domain and what is range? Clear है बात? अब बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस की, टाइप ऑफ रिलेशंस क्या है। अब मैंने यहाँ पे लिखे भी हुआ है ओवॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। व्हाट डू मीन बाय दैट, एक्चुअली एक और होता है, मैंने लिखा नहीं है वो। देखो वॉइड का मतलब, पहले तो मतलब समझ लो, वॉइड का मतलब नल भी होता है बेटा। अगर आपको याद हो व्हेन यू स्टडीड 11th स्टैंडर्ड द फर्स्ट चैप्टर सेट, वहां पे भी आपके पास सेट में ना एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट आता था। तो क्या मतलब था उसमें कि जब उसमें किसी भी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, जब सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होता तब उसको हम नल सेट वॉइड सेट बोलते थे। बट इसमें क्या करना है, इसमें रिलेशन आ जाएगा। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन, अभी हमने जो मोहन साहब को देखा था, अभी हमने मोहन को देखा था ना, मोहन का क्या था कि मोहन के पास इतने सारे रिलेशन थे, लेकिन मैंने बोला भाई मोहन को तुम जाके अपने फ्रेंड को लेके आओ, तो क्या मैंने यहाँ पे फ्रेंड का नाम लिखा है सेट में, ये बताओ, क्या मैंने फ्रेंड का नाम लिखा है, नहीं, लेकिन मैंने रिलेशन क्या डिफाइन कर दिया, तुम जाके अपने फ्रेंड को लेके आओ। तो क्या फ्रेंड इसमें है, और फ्रेंड जब इसमें है ही नहीं तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, उसकी वैल्यू नल हो गई, और वैल्यू अगर नल हो गई तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम वॉइड रिलेशन बोल देते हैं, नल रिलेशन बोल देते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोल देते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो अगर मेरे पास कोई भी A क्रॉस B है और व्हाट आई एम डिफाइनिंग कि R की वैल्यू क्या आ जाए, फाई आ जाए, तब मैं उसको क्या बोलूंगी, वॉइड रिलेशन बोलूंगी, नल रिलेशन बोलूंगी। चलो एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं आपको। सपोज यू हैव सेट A as 1 2 3 4, ये मैंने आपको दे दिया, ठीक है। आपको बता रहा, मैंने रिलेशन डिफाइन किया, यू नीड टू फाइंड आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5, ये मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया। डू वी हैव हियर एनी मल्टीपल ऑफ 5, है मेरे पास, नहीं है, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ऐसा रिलेशन जिसमें क्या, बट 5 तो फिर भी क्रॉस में बिलोंग तो करेगा ना, बिल्कुल करेगा, इसके A क्रॉस B में। तो 5 में क्या हुआ, R की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। और ऐसा रिलेशन जिसकी वैल्यू नल हो, 5 हो, जिसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर ही ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा वॉइड रिलेशन। आई होप इट इज क्लियर। अब यूनिवर्सल की बात कर लेते हैं, और अगर मैं इसकी बात करूं, एक सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है। अगर कभी कोई पूछे ना कि सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन कौन सा होता है, बेटा जी वॉइड रिलेशन सबसे स्मॉलेस्ट होता है, क्योंकि उसमें 5 है, 5 से छोटा क्या, बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल की। अब यूनिवर्सल में मैंने बोल दिया सेम एलिमेंट हम ले लेते हैं, सेम सेट एग्जांपल ले लेते हैं, वी हैव 1 2 3 4, और मैंने आपको बोल दिया R लिखिए आप, इट इज ऑल नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 4। तो क्या क्या आएगा इसमें, ऑल नेचुरल नंबर्स बताइए, डिफाइन करके बताइए। ऑल नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, बिकॉज मैंने इक्वालिटी भी लगाया। तो ये देखो दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस विल कंटेन्ड इन A क्रॉस A। अब देखो पूरा का पूरा इसमें आ गया,
तो जब पूरा का पूरा आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे कि आपने सेट के टर्म्स में पढ़ा था, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल बोलेंगे। एंड लाइकवाइज इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लार्जेस्ट रिलेशन ऑफ एनी रिलेशन। मतलब अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज द लार्जेस्ट रिलेशन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन, तो जो वॉइड सेट होता है दैट इज द स्मॉलेस्ट वन, जो यूनिवर्सल होता है वो दैट इज द लार्जेस्ट वन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। और इनको समटाइम्स वी ऑल्सो कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशंस, दे आर जस्ट कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशंस। कभी कभी नाम दे देते हैं कि भाई कौन कौन से दो रिलेशन ऐसे हैं जो कि ट्रिवियल बोलते हैं जिनको, ठीक है, ऐसे मतलब जो सभी में आएंगे, दैट इज योर वॉइड एंड यूनिवर्सल। तो आई होप इट इज क्लियर कि जब आर की वैल्यू 5 हो जाए, कोई भी रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर ना रहे, वो हमारा होगा वॉइड। और जबकि आर की वैल्यू पूरा a क्रॉस a के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, सिर्फ देखो ये मत बोल देना कि ये बराबर आर ए के है, ये नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हो तो मैंने सिर्फ सेट को डिफाइन किया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन किया है। हियर आर इज फ्रॉम वेयर, आर इज फ्रॉम ए टू ए क्रॉस ए आएगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज नथिंग बट ए क्रॉस ए, ए से ए पे डिफाइन हुआ है पूरा। सो दिस इज योर वॉइड एंड यूनिवर्सल रिलेशन। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब तीसरे की बात कर लेते हैं। वन मोर वी हैव, दिस वाज 2। अब एक और मेरे पास आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है, आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि व्हेन सपोज आपके पास है 1 2 3 और दूसरे वाले में भी क्या है 1 2 3, ठीक है, दोनों में एक ही है, ये वाला भी और ये वाला, तो दोनों को एक ही लिख देते हैं। तो अगर वन एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, इफ one element is related to itself only, is related to itself only, only बोला मैंने only, तब क्या होगा, तो इसमें क्या क्या आएगा अगर आप देखें, इसमें आएगा 1,1, you have 2,2 and you will have 3,3। तो अगर ये एक दूसरे से ही डिफाइन है तब इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, कई बुक्स में आपको आई करके कैपिटल नीचे आर लिखा होगा, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब उसी से डिफाइन है और कोई किसी के पास जाएगा नहीं, वो लाइक 1,2 नहीं जाएगा, 1,3 नहीं जाएगा, 2,1 2 3 3 1 3 2 कहीं नहीं जाएगा, वो सिर्फ खुद से डिफाइन करता है। मैं खुद की, जैसे बोलते हैं ना कि मैं खुद की फेवरेट हूँ, तो वही वाली चीज है कि वो सिर्फ अपने वाले के पास जाएगा और कहीं जाना ही नहीं है, उसने क्लियरली मना कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड योर आइडेंटिटी रिलेशन। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, what was void, what was universal and what is identity। I hope it is clear कि void का मतलब क्या है, universal का मतलब क्या है और identity का मतलब क्या है। I hope it is clear। चलिए अब दोबारा, अब जो बेसिकली हमको 3 पढ़ने हैं, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब नेक्स्ट रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है, तो अभी हमने पढ़ा ना, वही मतलब है कि सपोज यू हैव A, B एंड AB। पहले एग्जांपल के थ्रू समझो फिर आगे बढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या, सपोज आपके पास 2 है। रिफ्लेक्सिविटी कहती है कि कोई भी रिलेशन को हम कब कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे व्हेन, जो मैंने आइडेंटिटी बताया वही होता है। रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ व्हाट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जो फर्स्ट सेट हमको जो सेट दिया है, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, इट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। अब आप बोलोगे कि मैडम ये तो गड़बड़ हो गई, रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। चलो गड़बड़ बाद में बताऊंगी। मतलब रिलेशन में अगर ऐसा है इट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ का मतलब क्या है, A to A, B to B। अब कुछ बच्चे हैं जो सोचेंगे ये तो मैडम ने आइडेंटिटी बताई थी, तो ये रिफ्लेक्सिव कैसे हुआ, वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो क्या मतलब हुआ रिफ्लेक्सिव का, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, देन वी कॉल इट एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है बात। अब लिखने का तरीका कैसे, डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन ये है, इफ यू लेट सपोज लेट एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट। देखो हमेशा ना आपको एक सेट दिया होगा और एक रिलेशन डिफाइन होगा। याद रखना सेट में हमेशा एलिमेंट्स होते हैं, याद रखना ही, सेट में हमेशा एलिमेंट्स होते हैं, रिलेशन में हमेशा ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो कभी भी ऑर्डर्ड पेयर दिखे तो वो रिलेशन में डिफाइन होगा, और कभी सेट दिखे तो वो सेट में बिलोंग करेगा, ठीक है, सेट में आएगा अगर सीधा एलिमेंट दिखे तो क्या लिखा मैंने, लेट ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू द सेट, देन अगर आपका उसका डबलेट,
अगर उसका डबलेट, डबलेट मतलब दैट एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, अगर उसका डबलेट डिफाइन कर रहा है और वो रिलेशन में आर में है भी, तब उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन इज सपोज टू बी रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज सपोज टू बी रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कैसे, सपोज आई डिफाइन ए एज, फॉर एग्जाम्पल, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए एज लाइक लेट आउटकम्स ऑफ डाइज लिख देते हैं, मैंने थ्रोइंग डाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और मैंने यहाँ पे डिफाइन किया रिलेशन को, व्हाट, जस्ट गिव मी द डबलेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। ठीक है, तो क्या क्या डबलेट्स का मतलब क्या क्या आएगा यहाँ पे, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 एंड 6, 6। तो देख रहे हो कि हर एक एलिमेंट खुद से ही डिफाइन हो रहा है और किसी के पास वो नहीं जा रहा। सो दिस वी कॉल एज रिफ्लेक्सिव, दिस वी कॉल एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्योंकि आप देख लो, आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठा लो, आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, यहाँ से टेक एनी एलिमेंट इन ए, कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, आपको क्या मिलेगा उसका, आपको उसका डबलेट आर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट इसके लिए ना एक चीज देखनी, इट इज फॉर एवरी एलिमेंट, ऐसा नहीं है कि एक का है, दो का है, सभी का होना चाहिए। इसका मतलब होता है फॉर ऑल। जिन लोगों को नहीं पता है मैडम ने क्या सिंबल बना दिया, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। ठीक है, तो अगर मेरे पास 6 एलिमेंट्स ए में है तो 6 के 6 का डबलेट इट शुड बी प्रेजेंट इन द सेट, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक का हो गया तो बात बन गई। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द थिंग। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं द टाइप ऑफ रिलेशन में व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर सेट ए रिलेशन डिफाइन किया है, सेट ए में, इट इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू द आर। तो रिमेंबर, जब ऑर्डर्ड पेयर लिखा है तो आर में बिलोंग करेगा हमेशा, और सेट में अभी सिंगल एलिमेंट है तो वो सेट में करेगा। वैन इसको लिखते ऐसे भी है, ए आर ए फॉर एवरी, देखो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो देखो 1 2 3 अगर उसने लिया है और आर डिफाइन किया है तो रिलेशन में देखो, अब हमने क्या कहा था कि उसके सारे के डबलेट होने चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे डू वी हैव 1 1, यस वी हैव 1 1, वी हैव 2 2 एंड वी हैव 3 3 आल्सो। अब आप बोलोगे ये तो है मैडम, ठीक है, लेकिन ये वाले भी तो एक्स्ट्रा आ गए, ये कहां से आ गए? एक्स्ट्रा आ जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास ऐसे एक्स्ट्रा आ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप फोकस करिए व्हाट यू नीड, आप उस पर फोकस करिए कि आपको क्या चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात समझ में आई? अब बात करती हूँ इस चीज की जो आपके दिमाग में बहुत देर से चल रही होगी कि बट डिफरेंस क्या होता है आइडेंटिटी में और रिफ्लेक्सिव में। ठीक है, अगर आप देखो, मैडम ने तो बोला था आइडेंटिटी में भी क्या होता है, रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है, और यहाँ पे भी आपने ये बोला रिलेटेड टू इटसेल्फ, किस वाले में और इस वाले में। तो फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ, सपोज रिलेशन डिफाइन, मैं 2 रिलेशन डिफाइन करती हूँ, ठीक है, सपोज मैं 2 रिलेशन डिफाइन करती हूँ, सपोज इज 1 1 1 2, लेट्स सपोज 2 2, ए डिफाइन कर ले, दोनों के लिए एक ही सेट डिफाइन करते हैं 1 3, और लेट्स सपोज 2 1 ऑल्सो। ठीक है, मैंने सारे लिख लिए। और दूसरा मैंने डिफाइन किया 1 1 एंड 2 2। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू? अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ डबलेट्स हैं और यहाँ पे डबलेट्स तो हैं, उसके अलावा भी बहुत हैं। तो जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डबलेट्स होते हैं देन वी कॉल इट एज आइडेंटिटी। लेकिन जब डबलेट तो है, देखो डबलेट भी हो है और एक्स्ट्रा भी है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। अब एक चीज अगर देखी जाए, ये वाला जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी हो सकता है, ये आइडेंटिटी, सॉरी दिस इज ओनली आइडेंटिटी ऑल्सो एंड दिस इज रिफ्लेक्सिव ऑल्सो, क्योंकि इसमें डबलेट्स है भी और एक्स्ट्रा नहीं भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाले को हम आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव भी बोल सकते हैं, बट ये वाले को हम सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे, हम इस वाले को सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। ये आइडेंटिटी नहीं बन सकता, बिकॉज आइडेंटिटी सेज कि उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने डबलेट्स होने चाहिए, दैट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो आर यू क्लियर कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड रिलेशन? एनी रिलेशन कैन बी आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव बोथ, बट नॉट नेसेसरी कि वो अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी भी होगा, अगर कोई आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव भी होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी अगर है तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी भी होगा, हो सकता है उसके पास एक्स्ट्रा भी हो,
डबलेट्स तो है लेकिन एक्स्ट्रा भी हो, लेकिन जहां एक्स्ट्रा आ गए फिर वो आइडेंटिटी नहीं रहती, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला था कि मैं खुद की फेवरेट हूँ, तो अगर वहां पे कोई और भी फेवरेट हो गया तो फिर आइडेंटिटी यूनिकनेस नहीं रही। आर यू क्लियर कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव। आई होप इट इज क्लियर। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। अगर आपको सेट ए दिया है, सपोज आपको कोई सेट ए दिया है, उसमें एलिमेंट्स दिए हैं 3, तो बोलता है भाई नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बताओ। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली कैलकुलेट नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। कितने आएंगे? 2, n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, ठीक है। तो 2 टू द पावर कितना? 3 स्क्वायर माइनस 3, दैट विल बी 2, 9 माइनस 3 टू द पावर 6, ये आ जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सीधा सा 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो करके जरूर जाइएगा, वरना फिर सोचोगे भाई नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालते रहोगे बैठ के, कोई दिक्कत, मतलब निकालते रहना बैठ के, क्या कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अब बात करते हैं आगे। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आपको याद हो, आपने 7th 8th क्लास में एक चैप्टर हुआ करता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका एग्जैक्टली, शायद सिमेट्री करके कुछ नाम है, उसमें हम सीखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स की सिमेट्रिकल शेप भी है, लाइक सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर हम अल्फाबेट्स की बात करें, सपोज दिस इज द ए, तो अगर सिमेट्री का मतलब होता है अगर मैंने यहाँ पे मिरर रख दिया इसके पास, तो दूसरी साइड भी इसकी इमेज आनी चाहिए। सपोज मेरे पास क्या है, ये अब देखो एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। अगर मैंने सपोज बी ले लिया और बी में मैं अगर रख दूं तो बी कैसी शेप देगा? बी ऐसी शेप देगा, है ना। तो ये देखो, पहले वाले की अगर बात करें तो ये क्या है, ये सिमेट्रिकल है, लेकिन क्या ये सिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल मतलब है कि मिरर रखने के बाद भी बंदे की सेम इमेज दिखनी चाहिए, पर ये सिमेट्रिकल नहीं है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री फर्स्ट ऑफ ऑल। और वही चीज को हम कंटिन्यू करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशन। किसमें कंटिन्यू करेंगे? इन टर्म्स ऑफ रिलेशन में भी हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है। तो रिलेशन कोई भी अगर आपके पास डिफाइन है आर, तो उसको सिमेट्रिक कब बोलते हैं? डिफाइन फ्रॉम ए टू व्हाट? ए क्रॉस ए। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? इट इज, अगर मेरे पास ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, ठीक है, ए कोमा बिलोंग्स टू, पहले लिख लेते हैं, लेट पहले ए कोमा बी ले लेते हैं, ए एंड बी सेपरेटली बिलोंग्स टू ए। अब देखो मैंने यहाँ पे ना ओनली लगाया और पेयर नहीं लगाया, तो ए और बी और मैंने जब अलग अलग लिखे हैं तो वो किसमें आएंगे? ए में आएंगे। लेकिन जैसे ही मैंने ऐसे ब्रैकेट लगा दिया तब वो क्या बन गए? ऑर्डर्ड पेयर बन गए। तो ए कोमा बी अगर रिलेशन में है तो सिमेट्री कहती है कि इनका उल्टा, मतलब बी कोमा ए शुड आल्सो बी इन आर, तभी वो क्या बनेंगे? रिलेशन में सिमेट्रिक बनेंगे। तो इफ वी हैव ए आर बी, ऐसे लिख देते हैं ए आर बी, सो इफ दिस इंप्लाइज बी आर ए आल्सो, देन वी से दैट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। That is a symmetric relation. Now what do you mean by that? भाई R का मतलब कितना हो गया? Suppose R में मेरे पास है 1,2, तो इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए we should also have 2,1 also. इसका मिरर इमेज, इसका उल्टा मतलब 2 आगे और 1 पीछे. So this is we call as symmetrical what? Symmetric relation. अगर एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल suppose I take 2 triangles and they are congruent triangles. Suppose this is T1 and suppose this is 2T. ठीक है, तो अब आप देखिए, T1 is symmetric, T1 is similar to T2, or we can write T2 is also similar to T1. किसी को किसी के भी इक्वल बोलो, सिमेट्रिकल बोलो, एक ही बात है। तो T1 is similar to T1, T2 and T2 is also similar to T1. तो जब ऐसा रिलेशन डिफाइन हो जाए कि भाई सिमेट्रिकल, उसकी शेप भी प्रेजेंट है वहां पे, उसकी सिमेट्री भी प्रेजेंट है, उसका ऑपोजिट भी प्रेजेंट है, उसकी मिरर इमेज भी प्रेजेंट है, देन वी कॉल इट एज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, कुछ अलग से चीजें नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखिए, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर हमने कोई, क्या हुआ, कोई 2 एलिमेंट उठा लिए सेट में से, तो इफ वी हैव ए कोमा बी इन आर, तो वी शुड हैव बी कोमा ए इन आर ऑल्सो। बात समझ में है? जो मैंने लिखा था वहीं पे देखो, ये चीज ही लिखी थी मैंने कि अगर आपके पास 1,2 है और रिलेशन डिफाइन कर दिया, उसने क्या रिलेशन डिफाइन किया? इसने 1 to 1, देखिए 1 to 1 डिफाइन किया है, और 1,2 है, 2,2 है, ये रिलेशन डिफाइन किया है। तो क्या ये सिमेट्रिकल है? बिल्कुल है। क्यों है? देखो 1,1 अगर उठाते हैं, 1,1 का इमेज तो क्या रहेगा? 1,1 ही रहेगा, वो प्रेजेंट भी है यहाँ पे, तो ये है। सपोज मैंने नेक्स्ट उठाया 1,2, टू भी है 2,1, यस वी हैव 2,1, 2,2, जितने भी डबलेट्स होते हैं वो तो सिमेट्रिकल होते ही होते हैं। रिमेम्बर दिस, जो भी डबलेट्स होते हैं वो सिमेट्रिकल होते ही होते हैं। तो ये क्या होगा? रिलेशन एक सिमेट्रिकल रिलेशन होगा।
देखो अगर एक चीज और मैं बताती हूँ, अगर मैंने सपोज ये जैसे रिलेशन डिफाइन है, सपोज दिस इज 1,1, 1,2 एंड 2,2 एंड 2,1, सपोज मैं इसमें एक और दे दूं 2,3, ठीक है। अब आप बोलोगे इन सब के तो प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन बेटा क्या इसका प्रेजेंट है? नहीं है। तो अगर एक भी छूट गया तब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। रिमेंबर दिस थिंग, सभी का देखना आपने, यू नीड टू कंसिडर ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स कि उनके मिरर इमेज, उनकी सिमेट्री वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस इज वी कॉल सिमेट्रिक रिलेशंस। और फिर से टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला ये है आपके पास, 2 to the power n into n plus 1/2। फॉर्मूला लिखिए फिर से वही है कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 दिए हुए हैं तो आप सिमेट्रिक रिलेशंस कैसे निकालेंगे। अगेन दिस इज 1 मार्कर क्वेश्चन, पेपर में आ जाता है, फिर फॉर्मूला नहीं पता है तो ढूंढते रहना कैसे। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट वाला, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिव कहता है, देखिए सपोज मैं नॉर्मल एग्जाम्पल से समझाती हूँ पहले। ये एक फ्रेंड है, ठीक है, ये इसकी फ्रेंड है, 2 लड़कियां हैं और एक और फ्रेंड है, ठीक है, ये सब फ्रेंड है। सपोज ये है राधा, ये रोमा और ये रिंकी, ठीक है। ये मैंने 3 फ्रेंड्स ले ली। अब कुछ ना ब्लड रिलेशंस बना लेते हैं, ब्लड सिस्टर्स, जो ब्लड रिलेशन सिस्टर्स हैं। सपोज एबीसी नाम, वो नाम भी याद रखिएगा, एबीसी, ठीक है। अब राधा रोमा की फ्रेंड है, ठीक है, और रोमा रिंकी की फ्रेंड है, तो क्या जरूरी है कि रिंकी और राधा भी फ्रेंड होंगे? बिल्कुल जरूरी नहीं है। किसने कहा है भाई? बात समझ में आ रही है? राधा रोमा की फ्रेंड है और रोमा की क्यों है, रोमा की फ्रेंड रिंकी है, लेकिन क्या जरूरी है कि रिंकी और राधा फ्रेंड होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन अब 3 सिस्टर हैं, ब्लड सिस्टर्स है, ए बी की सिस्टर है, बी सी की सिस्टर, तो डेफिनेटली ए और सी सिस्टर हुए कि नहीं हुए? बस यही ट्रांजिटिव होता है, यही ट्रांजिटिव होता है। बात समझ में आई? मतलब लेट सपोज मैंने डिफाइन कर लिया a, b, c, 3 एलिमेंट मैंने उठा लिए सेट में, तो पहले 2 का लो, पहले फर्स्ट 2 को लो। तो क्या कहता है कि इनका ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन में है, a, b अगर रिलेशन में है, फिर लास्ट वाले 2 लो। ये अज्यूम करके चलना, लेट a b बिलोंग्स टू r एंड b c ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो क्या बोलेगा, अगर अब a और c भी रिलेशन में है तब उसको हम क्या बोल देते हैं, तब हम उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव। बात समझ में आई? देखो एग्जांपल समझो, मैंने एग्जांपल समझाया, एक फ्रेंड दूसरी राधा रोमा की फ्रेंड, रोमा रिंकी की फ्रेंड, तो कोई जरूरी नहीं है कि राधा और रिंकी फ्रेंड हो, नहीं हो सकता ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन ब्लड सिस्टर्स की अगर बात करें कि भाई 2 सिस्टर हैं, 2 बहनें हैं, 3 बहनें हैं, ब्लड सिस्टर्स हैं, 3 बहनें, एक ही माँ बाप की 3 लड़कियां हैं, तो ए बी की अगर सिस्टर है और बी सी की सिस्टर, तो डेफिनेटली ए और सी सिस्टर्स हुए। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। यहां से पढ़ सकते हैं आप, देखिए 3 एलिमेंट्स मैंने उठा लिए, 3 एलिमेंट्स मैंने उठा लिए। मैंने जैसे कि भी बोला था कि पहले फर्स्ट 2 को लीजिए, ये ले लीजिए फर्स्ट 2 को, और फिर लास्ट 2 को लीजिए, लास्ट 2 को ले लिया। तो वो कहते हैं कि अगर ये दोनों रिलेशन में है तो इनका जो आगे पीछे वाला, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला भी किसमें होगा, रिलेशन में होगा, तभी वो जाके ट्रांजिटिव होगा। अगर नहीं है तो नहीं है। देखो एग्जांपल देखो, 1 2 3 रिलेशन क्या डिफाइन किया, कोई भी एलिमेंट उठा लो आप। सपोज मैंने उठा लिया 1,3, 1,3 नहीं है, इसमें दिख नहीं रहा। सपोज मैंने 1, हमेशा, लेकिन एक चीज बात की ध्यान रखनी है कि आपने दूसरा, पहला और दूसरा उठाना कैसे है। देखिए पहला उठाया a, b, तो दूसरा उठेगा कैसे, जहां पे पहला का खत्म हुआ वहीं से दूसरे की स्टार्टिंग होगी। ये देख रहे हो आप, a b है तो b c, ऐसे नहीं कि c d कुछ भी उठा लिया, नो, जहां से a, b पे अगर छोड़ा है तो नेक्स्ट वाला जब उठाओगे तो b, c उठाओगे, ठीक है। उसी के बाद आप बोलोगे कि a, c बिलोंग्स टू r। तो 1,1 तो जो हम नेक्स्ट सेट उठाए, सेट ऑर्डर पे उठाएंगे, वो 1 से रिलेट करते उठाना है। तो 1,1 अगर उठाया तो सपोज 1,3 उठा लिया, तो 1,2 उठा लिया, तो 1,2 ऑल्सो शुड हैव इन द रिलेशन, ये है, और 1,3 उठाया तो 1,3 भी है। अब जैसे कि मैं इसको उठा लेती हूँ, सपोज ये उठा लेती हूँ, 1,2 एंड 2,1, ये दोनों मैंने उठा ली। तो वी शुड हैव व्हाट, व्हाई वी शुड हैव 1,1, डू वी हैव 1,1? यस वी हैव 1,1। बात समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? दिस इज हाउ यू नीड टू डिफाइन योर रिलेशंस। क्लियर है बात? आई होप इट इज क्लियर। दिस इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। चलिए एक चीज और आपको बताते हैं, अब थोड़ा सा इनके बाद में डिफरेंशिएट कर देते हैं।
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब इसको ध्यान से देखिए कि तीनों में फर्क क्या है और तीनों में आपने लिखना कैसे है। जब आप रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप एक एलिमेंट उठाओगे सेट में से। जब आप सिमेट्री की बात करते हो तब आप 2 एलिमेंट उठाओगे सेट में से, और जब आप ट्रांजिटिव की बात करते हो तब आप 3 एलिमेंट उठाओगे सेट में से। रिमेंबर दिस थिंग, रिफ्लेक्सिविटी में 1 एलिमेंट लेना होता है, सिमेट्री में 2, क्योंकि एक लोगे तो डबलेट बन जाएगा, सिमेट्रिक में 2 चाहिए क्योंकि तभी तो उसमें सिमेट्री आएगी, और ट्रांजिटिव में 3 उठाने पड़ते हैं। एलिमेंट की बात करी मैंने, और ये कहता है कि इसका डबलेट आर में होना चाहिए, ठीक है। और ये कहता है कि अगर a, b आर में है तो b, a भी आर में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और ये कहता है कि भाई फर्स्ट 2 को ले लो, a, b अगर आर में है, एंड फिर अगर b, c भी आर में है तो इन दोनों को मिला के a, c should also be in the relation. This is the meaning of what? Transitive, reflexive, symmetric and transitive. I hope it is clear कि लिखना कैसे है, मतलब डेफिनेशन क्या है रिफ्लेक्सिव का, सिमेट्रिक का और ट्रांजिटिव का मतलब क्या है। नहीं समझ में आता है, यू डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वाला समझ में नहीं आया। विल क्लियर इन द नेक्स्ट वीडियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब कोई भी रिलेशन ऐसा है कि भाई वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज इक्विवेलेंस रिलेशन। कई बार पेपर में आता है कि शो दैट इट इज इक्विवेलेंस, तो इक्विवेलेंस का अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है सच, सिर्फ आप क्या बोलेंगे? इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और तीनों कंडीशन चेक कर लीजिए। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है मतलब वो इक्विवेलेंस होगा, और एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो नहीं होगा। अब 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। लेट आर इज द रिलेशन ऑन द सेट ए। सेट ए क्या डिफाइन किया? 1 2 3 4 5, और रिलेशन डिफाइन किया है 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 3 1 एंड दिस। पूछ रहे इट इज इक्विवेलेंस और नॉट, तो सबसे पहले इक्विवेलेंस के लिए क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहता है? देखो सेट क्या दिया उसने, सेट दिया आपको पास 1 2 3 4 एंड 5, तो रिफ्लेक्सिविटी कहती है कि सबके डबलेट्स होने चाहिए। डू वी हैव द डबलेट्स? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 डबलेट्स है, तो बिल्कुल इट इज रिफ्लेक्सिव। आप लिखेंगे वी हैव 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, सब लिखेंगे, all belongs to the relation, so it is reflexive. This is the method to write. आप लिखने का तरीका भी आना चाहिए। How you know the things, that is a different issue, but how you present you think matter, that is the different matter. So this is reflexive. अब बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री की अगर बात करी जाए तो देखिए जो रिलेशन में दिया हुआ है सिर्फ उस पर देखना है, अब उसमें उठाने नहीं है। अब कोई भी रिलेशन दिया है, सपोज मैंने 1,1 उठाया, 1,1 का इमेज क्या होता है? सेम ही होता है, दैट इज तो सिमेट्रिकल। 2,2 इज आल्सो डबलेट्स का सबका अवेलेबल था, डबलेट्स का सबका सिमेट्रिकल शेप होता है। अब डबलेट्स कौन सा नहीं है? 1,3, तो इस टू बी सिमेट्रिक वी शुड हैव 3,1. डू वी हैव 3,1? यस वी हैव। सो दिस इज आल्सो बिकॉज वी हैव 1,3 वही लिखेंगे एज वी आर, सो वी हैव दैट 3,1 आल्सो बिलोंग्स टू। डबलेट्स का मत लिखना कभी भी, क्योंकि डबलेट्स का अगर लिखोगे तो वो तो हमेशा होता ही होता है, वो उठाओ जो कि नॉन डबलेट्स है, ठीक है। तो ये अगर रिलेशन आर में है 1,3 अगर है तो 3,1 ऑल्सो भी है, तो ये सिमेट्रिक बेटा होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में कितना है? सपोज मैंने उठाया 1,3 1,1, तो 1 से शुरू होता हुआ उठा रहा है, 1,1 उठा लिया। सपोज मैंने 1,1 उठाया, तो 1 से शुरू होते हुए भी मुझे दूसरा लेना है। कौन सा लेंगे? देखो 1 से शुरू होते हुए कौन सा है? ये वाला है 1,3। तो 1,1 और 1,3 उठाया, तो वी शुड हैव कितना? वी शुड हैव 1,3 ऑल्सो। डू वी हैव 1,3? डेफिनेटली वी हैव इन द रिलेशन। एक ये उठाया था और एक ये उठाया था, ये है, तो ये ट्रांजिटिव है। क्लियर है बात? सपोज आप बोलोगे कि मैंने कुछ और उठा लो, 1,3 उठा लिया एंड 3,1 उठा लिया, इसके हिसाब से वी शुड हैव 1,1। डू वी हैव 1,1? डेफिनेटली वी हैव 1,1। सो दिस इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। ये ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, तो हम क्या बोलेंगे? हैंस इट इज इक्विवेलेंस ऑल्सो। इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग ऑल द 3 कंडीशन। इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक एंड इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। आई होप इट इज क्लियर कि कैसे डिफाइन करना है आपने। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन।
अब आपको दिया है 1 2 3 4 5 ये सेट दिया है और रिलेशन डिफाइन किया है कि भाई ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें a माइनस बी अगर करूं तो इवन नंबर्स आ जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी की। अब देखने का तरीका देखो कि रिफ्लेक्सिव को लिखना कैसे। वो तो वहां पे तो अगर ऑर्डर्ड पेयर बड़े बनाए हैं तब की बात अलग है, यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं कि आप बनाने बैठोगे पूरा, नहीं। देखिए, यू टेक एनी एलिमेंट, अगर सपोज मैंने कोई भी सेट में से एलिमेंट उठा लिया, अब ए कैन बी 1 2 3 4 5 कोई भी हो सकता है। अब रिलेशन कहता है रिफ्लेक्सिविटी के लिए कि उसका डबलेट मतलब ये हो गया। अब सीधा नहीं लिखना, देखो लिखने का तरीका होता है उसका डबलेट उठाया। डबलेट क्या करना चाहिए, रिलेशन के में बिलोंग करना चाहिए। रिलेशन क्या है कि a माइनस बी इवन होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर डिफाइन करूं रिलेशन के हिसाब से, ये है a कॉमा बी, मैंने b को भी a रख दिया। इसका ये कहता है कि a माइनस a इज इवन। क्या a माइनस a इवन होता है? a माइनस a का मतलब 0, डेफिनेटली इवन होता है। और ये अगर इवन है तो इट विल बिलोंग्स टू रिलेशन एंड दिस इंप्लाइज इट इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। पैटर्न लिखने का तरीका, अगर उसने रिलेशन दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया है, वो रिलेशन को आपने अपने क्वेश्चन में फ्रेम करना है, लेके आना है। सो ऐसा नहीं कि सीधा सीधा मैंने बोला a बिलोंग्स टू a तो आप लिख दो a कोमा a बिलोंग्स टू r। नो, आपने जो रिलेशन डिफाइन किया उसको भी दिखाना है। सो नाउ इट इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। अब दूसरी बात करते हैं सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में कितने उठाएंगे? अब उठाएंगे 2। सो लेट a कोमा b बिलोंग्स टू r, लेट a कोमा b बिलोंग्स टू a, सेपरेटली रखना है। तो सिमेट्री क्या कहती है कि a कोमा b बिलोंग्स टू r, पहले ये है लेट करना है और प्रूफ क्या करना है कि b कोमा a भी किसमें होना चाहिए? r में होना चाहिए। तो a कोमा b अगर बिलोंग्स टू r कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, डेफिनेशन क्या देगा? डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है? इसका मतलब है कि a माइनस b इज इवन। इवन का मतलब इट कैन बी वी कैन राइट इट इज मल्टीपल ऑफ 2, वो भी लिख सकते हैं। अगर a माइनस b इवन है तो क्या b माइनस a इवन नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा ये बताओ, क्योंकि मॉडुलस का साइन लगा, अगर नेगेटिव आ भी जा रहा है तो क्या ही फर्क पड़ जा रहा है। अगर a माइनस b इवन है तो क्या b माइनस a इवन नहीं होगा? सपोज मैंने 2 और 4 उठाया, अगर 2 माइनस 4 इवन दे रहा है, क्यों देगा मॉडुलस के साथ? तो क्या 4 माइनस 2 नहीं देगा? बिल्कुल देगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो अब ऑर्डर्ड पेयर कैसा लिखा जाएगा? अब b कोमा a लिखा जाएगा और b कोमा a बिलोंग्स टू r। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं दिस इंप्लाइज b कोमा a बिलोंग्स टू r। नहीं बेटा, आपने जो अज्यूम करना है वो लिखना है पहले, फिर उसका रिलेशन को डिफाइन करना, उसकी डेफिनेशन, फिर उसको ऑपोजिट करके देखिए, इज इट दैट कंडीशन ट्रू और नॉट। अगर ट्रू है तो इट विल बिलोंग, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। इसका मतलब ये क्या हुआ? अब ये सिमेट्रिक भी हुआ। आई होप इट इज क्लियर। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल बिठा के देख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना लेंगे हम? अब लेंगे लेट a b एंड c। अब 3 उठाएंगे किसमें? सेट में। तो अब हम और पेयर वाइज पहले 2 ले लेते हैं। a माइनस a कोमा, अभी क्या लिखा है? a कोमा b बिलोंग्स टू r। दिस इज अगेन assumption, लेट कंडीशन, एंड b कोमा c बिलोंग्स टू r। ये तो हमने अज्यूम कर लिया। व्हाट वी नीड टू प्रूव? वी नीड टू प्रूव a कोमा c आल्सो। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, बट a कोमा b अगर रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस b क्या करेगा? a माइनस b इवन होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, और यहां से क्या करेगा? इसका मतलब ये हुआ कि b माइनस c इज ऑल्सो इवन नंबर। बात समझ में आ रही है? अब हमें तो a माइनस c से मतलब, आप क्या कर दो, इनको ऐड कर दो दोनों, a माइनस b प्लस b माइनस c। कैन वी ऐड? ये दोनों कट जाएंगे। क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा a माइनस b c इवन नंबर। बचा कि नहीं बचा? और a माइनस c जैसे हुआ तो हमें क्या चाहिए था कि a कोमा c विल बिलोंग्स टू r। देखो हो गया। अगर ये हो गया तो ये क्या हो गया? ये ट्रांजिटिव भी हो गया। दिस इज हाउ यू नीड टू राइट योर क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे a कोमा b r लिखा, b कोमा c r लिखा, इंप्लाइज a कोमा c r लिख दिया। नहीं, आपको जो रिलेशन उसने डिफाइन किया है वो फ्रेम करके दिखाना है अपने क्वेश्चंस में। वो आपने क्वेश्चंस में फ्रेम करके दिखाना है, तभी बात बनेगी। अगर आपने वो फ्रेम करके नहीं दिखाया तो आपकी बात नहीं बनेगी। आई होप इट इज क्लियर हाउ टू राइट डाउन योर क्वेश्चंस। ज्यादा नहीं करेंगे, अब एक और कर लेते हैं बस, लास्ट क्वेश्चन, सो दैट ये ऑर्डर्ड पेयर वाला मैंने उठाया है, सो दैट आपको थोड़ा क्लियर रहे कि शो दैट गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब डिफाइन कैसे किया है? ऐसे किया है। ठीक है, आप बोलोगे ये तो कुछ अलग हो गया। अलग नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे उसने पहले हम एलिमेंट्स में डिफाइन कर रहे थे, उसने ऑर्डर्ड पेयर में डिफाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिविटी में क्या लेंगे? देखो, जब एलिमेंट्स दिए होते हैं, अभी देखो यहाँ पे देखो, पहले वहां पे a r b लिखा होता था, यहाँ पे क्या p q r s 4 4 हो गए।
तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में डिफाइन है, तो आप कैसे लेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की अगर बात करें, आप लेंगे A, B लेंगे यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर अज्यूम करना है, ठीक है, क्योंकि देखो ये एक एलिमेंट को हम ट्रीट करें, ये हमारा A होता है, हम तभी तो A लेते हैं और फिर A, दिखाते हैं। यहाँ पे हम वही चीज दिखाएंगे, A, बिलोंग्स टू A, तो भी क्या हो जाएगा A, B आर A, B, दोनों जगह एक ही चीज आएगी। अगर आप याद रखो पहले वाला हमारे पास क्या होता था, A हम करते थे, देन वी यूज्ड टू से A, मतलब जो क्या है उसके आगे भी रिलेशन के वही लिखना है, पीछे भी वही लिखना है। अब यहाँ पे हमने A, B लिया है, क्यों? क्योंकि हमारे पास पेयर ऑर्डर में दिया हुआ है, चीजें ऑर्डर्ड पेयर में दिया हुआ है, तो A, B लिया हमने A में, तो हम क्या लिखेंगे AB, R और AB। और इसका मतलब उसने क्या डिफाइन कर रखा है रिलेशन को उसने जो डिफाइन किया वो करते हैं। उसने बोला PS इज इक्वल टू Q प्लस R। PS मतलब उसने फर्स्ट और लास्ट को जोड़ा और मिडिल के दोनों को जोड़ा, ठीक है, उसको तब उसने इक्वालिटी दी। तो सेम हम भी कर लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ लेते हैं A प्लस B, और इसको हम क्या देते हैं, दिस विल बी B प्लस A। तो क्या ये कंडीशन इक्वल है या नहीं है, बताओ? बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस बिलोंग्स टू द रिलेशन और हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। सही है ना, कंडीशन तो ट्रू है, तो इट बिलोंग्स टू द रिलेशन एंड इट इज रिफ्लेक्सिव आल्सो। अब बात करते हैं सेम चीज में सिमेट्री की। अब रिमेंबर, याद रखिए कि जब हमने यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर लिया था, अब यहाँ पे हम कितने ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, अब यहाँ पे हम 2 ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, एक AB ले लेते हैं, एक CD ले लेते हैं, सॉरी एक AB ले लेते हैं और एक CD ले लेते हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर, अब आप बोलोगे मैम हमेशा ऑर्डर्ड पेयर को रिलेशन में डिफाइन करता है, बट यहाँ पे रिलेशन डिफरेंट तरीके का है, यहाँ पे 4 में डिफाइन हो रहा है, तो 2 में हमारा सेट आ जाएगा। तो A, B एंड B, C, D बिलोंग्स टू द A। ये डिफरेंट था इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया। तो क्या कहता है कंडीशन कि लेट A, B, R, C, D, अगर ये मेरे पास कंडीशन है तो वी शुड हैव, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट वी शुड हैव, कि सिमेट्रिक के लिए वी शुड हैव C, D, R, A, B। इफ यू हैव A, B, R, C, D, देन वी शुड हैव C, D, R, A, B। अब पहले इसको डिफाइन करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करना है, और इसका मतलब है कि बीच वाले 2 को ऐड करना है, ठीक है। अब मैं क्या कहती हूँ, तुमको अगर नहीं समझ में आया ना, तुमको क्या प्रूफ करना है, आप उल्टा लिखो, थोड़ा सा गैप छोड़ दो, यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ दो, और उसमें क्या लिखो, देखो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था C, D, R, A, B। आप उल्टा भी जा सकते हो, नीचे लिख दो थोड़ा सा, ये मैं प्रूफ करना, ये मैंने प्रूफ कर दिया। इससे ऊपर होना क्या चाहिए, इसके ऊपर तभी होना चाहिए जब ये हो जाए कि भाई फर्स्ट और लास्ट को ऐड किया था हमने, C प्लस B इक्वल टू D प्लस A। लिख सकते नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब उल्टा ले जाओ, फिर से एक और स्टेप आ जाएगा। देखो ये इधर लिखा था ना, इसको भी सीधा लिख दो, C प्लस B इक्वल टू D प्लस A। क्या फर्क पड़ गया, सिर्फ चीजों को रीअरेंज करके लिखना है। मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें पहले आंसर बता दिया, आंसर से उल्टा जाओ, उल्टे स्टेप, कि हमें चाहिए ये वाला तो हमारा आंसर आएगा, फिर इसके ऊपर हमारे पास ये वाला तो हमारा आंसर आएगा। और देखो ये क्या था, A प्लस D को मैंने क्या लिख दिया, D प्लस A, आगे पीछे करके, और B प्लस C को क्या लिख दिया, C प्लस B। 1 प्लस 2 इज नथिंग बट 2 प्लस 1, तो मैंने आगे पीछे करके लिख दिया, उनकी लेफ्ट टू राइट ले गए, राइट टू लेफ्ट ले गए। क्या फर्क पड़ गया, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा। सो दिस इज सिमेट्रिक ऑल्सो, डिफाइन हो गई कि A, B, R, C, D सेम एज C, D, R, A, B। सो दिस इज सिमेट्रिक ऑल्सो। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे फिर से बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसको आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप इसको समझाऊंगी अच्छे से, ठीक है। बट आई डोंट थिंक सो कि अगर आप इसको कि आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत इजी चीज है। अगर आप 1-2 बार देखिए वीडियो को, समझ में आएगा आपको। आप डेफिनेटली ट्राई करिए, ट्राई करेंगे तब होगा, सिर्फ देखने से चीजें सॉल्व नहीं होगी। जैसे मैंने बताया, रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट उठाओ, मूव करो कि उसमें R रिफ्लेक्ट, उसका डबलेट प्रेजेंट है। सिमेट्रिक में 2 उठाओ, उसका आप मिरर इमेज प्रूव करिए। ट्रांजिटिव में 3 उठाओ, फिर पेयर वाइज लेके प्रूव करो कि फर्स्ट और लास्ट भी क्या है, रिफ्लेक्सिव में प्रेजेंट, सॉरी सिमेट्रिक उसमें रिलेशन में प्रेजेंट है। अब ट्रांजिटिव की अगर बात कर लेते हैं तो क्या लेना है, अब 3 लेंगे, AB, BC एंड सॉरी BC नहीं, लेट्स सपोज CD, डिफरेंट लेने हैं, एंड सपोज दिस इज EF बिलोंग्स टू द। आई होप इट इज क्लियर। अब 2-2 करके उठा, मैंने उठाया A, B, R, C, D। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ that A plus D should be equals to B plus C, isn't it? होना चाहिए कि नहीं होना। फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दो और मिडिल को ऐड कर दो। सिमिलरली अब नेक्स्ट को लेते हैं, अब लेते हैं C, D
आर ई कोमा एफ। तो ये क्या देगा, दिस विल गिव मी C plus F, what it will implies C plus F equal to B plus E। होगा कि नहीं होगा? अगर ये हुआ, अब क्या किया, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए भाई A कोमा B R E कोमा F। ये चाहिए कि नहीं चाहिए, कि नहीं चाहिए कि भाई फर्स्ट और लास्ट वाला कर दे। कर लेते हैं, कैसे, अब देखो, अगर मैं इसके लेफ्ट और लेफ्ट जोड़ दूं, राइट और राइट जोड़ दूं, तो I will have A plus B plus C plus F equal to B plus C plus D plus E। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, C C D D। अब देखो क्या बचा है, A plus F equal to B plus E। अब चेक कर लो, इसको प्रूफ करने के लिए A plus F आना चाहिए और B plus E आना चाहिए। क्या आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये ट्रांजिटिव है, और अगर ये ट्रांजिटिव भी है तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करके क्या बन गया, ये बन गया इक्विवेलेंस रिलेशन, ये बन गया इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप इट इज क्लियर। इसीलिए मैंने आपके पास एक ये क्वेश्चन उठाया था, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर का क्वेश्चन आता है। जब ये नॉर्मल वाले आपके पास आते हैं, एक एलिमेंट वाले, देन यू कैन डू दैट, बट इफ यू हैव ऑर्डर्ड पेयर, देन हाउ यू नीड टू राइट योर क्वेश्चंस। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस इज जस्ट योर रिलेशन, दिस इज कंप्लीट रिलेशन। इसके अलावा आपके पास रिलेशंस में कुछ नहीं आएगा। लाइक आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक। इफ यू सी फ्रॉम द स्टार्टिंग, means what was Cartesian, how many Cartesians will be there, then what is relation, किसी relations total number निकालते कहते हैं, what is domain, what is range, then what are different types of relations we have, void, universal, then we have identity, then we have reflexive, then what is difference between identity and reflexive, I hope you remember. And then we have how to find out like total number of reflexive, then what is symmetrical, then how to find total number of symmetrical, then transitive, and then I discussed the examples also. तो अगर इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि दिस थिंग इज नॉट क्लियर, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर। सो जस्ट प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस। इसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला आपके पास। इतना अगर आपने कर लिया, देन यू विल बी थोरो विद योर रिलेशन पार्ट of your chapter 1 class 12th. The functions part we'll do in the next video, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि फंक्शन होता क्या है, and what type of different functions we have, कि वहाँ पे one function है, on to, into, many one, ये सब पढ़ेंगे। And if you like the video, please share with your friends, बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी, and subscribe for more videos on different topics. Clear? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care and bye.